اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ نیپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نیپولین نے خالد بن ولید کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپاہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نیپولین کا دور خالد رضی اللہ عنہ کے دور سے تقریباً 1200 سال بعد کا ہے۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جاتی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو 1-2 روز کے بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے۔ جذبے اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کا افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہ ہوتی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے، انہیں اونٹوں پر سوار کروایا جاتا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا۔ یہ فوج عموماً دشوار رستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اسے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے سالاروں کو پیغام دیے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھیں، کہیں بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब बसरा को मुहासरे में ले रखा था और सूरत हाल बता रही थी कि बसरा रूमियों के हाथ से जा रहा है, तो शहंशाह हरकल रूमी ने हम्स के हाकिम वरदान को एक पैगाम भेजा। क्या तुम शराब में डूब गए हो या तुम उन औरतों जैसी औरत बन गए हो जिनके साथ तुम्हारी रातें गुजरती हैं? हरकल ने लिखा था, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा दिन ऊँघते गुजरता है। क्या है उन मुसलमानों के पास जो तुम्हारे पास नहीं? अगर मैं कहूँ कि कैसर रूम की जिल्लत के जिम्मेदार तुम जैसे हाकिम हैं तो क्या जवाब दोगे? तुम शायद ये भी नहीं सोच रहे कि मुसलमानों की इतनी तेज पेशकदमी और फतह पे फतह हासिल करते चले आने को किस तरह रोका जा सकता है। क्या तुम्हारी तलवारों को जंग ने खा लिया है? क्या तुम्हारे घोड़े मर गए हैं? लोगों को तुम बताते क्यों नहीं कि मुसलमान तुम्हारे मालो अमवाल लूट लेंगे, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी बहनों को अपने कब्जे में ले लेंगे? मुझे बताया गया है कि मुसलमानों की तादाद 30,000 से जरा कम है या ज्यादा। तुम ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करो और अजनादीन के इलाके में पहुंच जाओ। महाज को इतना फैला दो कि मुसलमान उसके मुताबिक फैलें तो उनकी हालत कच्चे धागे की सी हो। उन्हें अपनी तादाद में गुम कर दो। रूमियों की बादशाही में हंगामा बपा हो गया था। रूमियों और ईसाइयों की इबादत गाहों में पादरियों और पुरोहितों ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज वाज शुरू कर दिए थे। वो कहते थे कि इस्लाम उनके मजहबों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और उन्हें मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और ये ऐसा गुनाह होगा जिसकी सजा बड़ी भयानक होगी। रूमियों की फौज एक मुनज़्ज़म लश्कर था। उनके पास घोड़ों की तादाद ज्यादा थी और उनके पास गाड़ियां भी थीं जो घोड़े और बैल खींचते थे। रसद का इंतजाम बहुत अच्छा था। इबादत गाहों में लोगों ने वाज सुने तो वो फौज में शामिल होने लगे। इस तरह उनकी फौज की तादाद बढ़ गई। हम्स का हाकिम वरदान जब फौज के साथ अजनादीन को रवाना हुआ, उस वक्त फौज की तादाद 90,000 थी। मुसलमानों के जासूसों ने उस लश्कर को अजनादीन के इलाके में खैमाजन होते देखा था। इतने बड़े और ऐसे मुनज़्ज़म लश्कर के मुकाबले के लिए जाना ही बहुत बड़ी जुर्रत थी। मुकाबला तो बाद का मसला था। 24 जुलाई 634 ईस्वी के रोज खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी फौज के साथ अजनादीन पहुंच गए। वो बैतुल मुक़द्दस के जुनूब में पहाड़ियों में से गुजरे थे। उन पहाड़ियों के एक तरफ मैदान था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां क़याम का हुक्म दिया। तकरीबन 1 मील दूर रूमी फौज खैमजन थी। उसका सालार आला वरदान और सालार कुबकुलार था। रूमी फौज तो जैसे इंसानों का समंदर था। मुसलमानों की फौज उसके मुकाबले में छोटा सा दरिया लगती थी। इस्लामी फौज के जो दस्ते दूसरी जगहों पर थे वो आ गए और मुसलमानों की तादाद 32,000 हो गई। 1 मील कोई ज्यादा फासला नहीं होता। मुसलमान ऊंची जगहों पर खड़े होकर रूमियों की खैमागाह की तरफ देखते थे। उन्हें हद निगाह तक इंसान और घोड़े नजर आते थे। 2-3 दिनों के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि फौज में कुछ घबराहट सी पाई जाती है। मौरिख लिखते हैं कि उन 9,000 मुजाहिदीन में जरा सी भी घबराहट नहीं थी जो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे। वो ईसाइयों, गुस्सानियों और रूमियों के खिलाफ लड़ते चले आए थे। वो रूमियों की इतनी ज्यादा फौज से खौफजदा नहीं थे। दूसरे दस्तों का हौसला बढ़ाने के लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खैमागाह में घूमने फिरने लगे। वो जहाँ रुकते उनके इर्द गिर्द मुजाहिदीन का मजमा लग जाता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे एक ही जैसे अल्फाज कहे, इस्लाम के सिपाहियों, मैं जानता हूँ तुमने इतनी ज्यादा रूमी फौज पहले कभी नहीं देखी, लेकिन तुम इतनी बड़ी फौज को पहले शिकस्त दे चुके हो। खुदा की कसम तुम डर गए तो हार जाओगे, और अगर तुमने इस लश्कर पर फतह पा ली तो रूमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अपने अल्लाह के नाम पर लड़ो, इस्लाम के नाम पर लड़ो। अगर तुमने पसपाई इख्तियार की तो दोज़ख की आग में जलोगे। जब लड़ाई शुरू हो जाए तो अपनी सफों में बदनज़मी पैदा न होने देना। कदम जमा कर रखना। जब तक मेरी तरफ से हुक्म न मिले न पीछे हटना न हमला करना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। उधर रूमियों का सालार आला वरदान अपने कमांडारों से कह रहा था, ऐ रूमियों, कैसर रूम को शिकस्त की जिल्लत से बचाना तुम्हारा फर्ज है। कैसर रूम को तुम पर एतमाद है। अगर तुमने इन अरबी मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त न दी तो ये तुम पर हमेशा की तरह गालिब आ जाएंगे। ये तुम्हारी बहनों, बेटियों और बीवियों को बेआबरू कर देंगे। अपने आप को मुंतशिर न होने देना। सलीब की मदद मांगो, फतह तुम्हारी है। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है, एक के मुकाबले में तुम 3 हो। 2-3 दिन मजीद गुजर गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मनों की सही तादाद और कैफियत मालूम करना
चाहते थे। वो किसी भी जासूस को भेज सकते थे, लेकिन उन्हें जिस किस्म की मालूमात की जरूरत थी वो कोई ज़हीन और दलेर आदमी हासिल कर सकता था। उन्होंने अपने सलारों से कहा कि उन्हें कोई आदमी दिया जाए। सलार ज़र्रार बिन अल अज़वर ने कहा, इब्न वलीद, खुदा की कसम मुझसे बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकेगा। ज़र्रार वो सालार थे जिन्होंने बसरा के मार्के में न सिर्फ अपनी ज़र्रा उतार फेंकी बल्कि कमीज भी उतार कर कमर तक बरहना हो गए और ऐसे जोश से लड़े कि सारे लश्कर के जोश जज्बे में बेपनाह इजाफा हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ इब्न अल अज़वर, तुम्हारे सिवा ये काम और कौन कर सकता है? तुम ही बेहतर जानते हो कि तुम्हें वहाँ क्या देखना है। ज़र्रार ने कमीज उतार फेंकी और कमर तक बरहना हो गए। वो घोड़े पर सवार हुए तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सालारों ने कहका लगाया। ज़र्रार ने हल्की सी एड़ लगाकर कहा, खुदा हाफिज मेरे रफीको। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे इब्न अल अज़वर। रूमियों की खैमागाह के करीब एक ऊंची टेकरी थी। ज़र्रार ने घोड़ा नीचे रोका और टेकरी पर चढ़ गया। मुसलमानों और रूमियों की खैमागाह के दरमियान 1 मील का इलाका खाली था। दोनों फरीकैन के गश्ती संतरी उस इलाके में गर्दिश करते रहते। ये गश्ती संतरी घुड़सवार होते थे। ज़र्रार को रूमियों के गश्ती सवार नहीं देख सके थे। ज़र्रार टेकरी पर चढ़े तो दूसरी तरफ रूमियों के संतरी मौजूद थे। उन्होंने ज़र्रार को देख लिया। ज़र्रार तेजी से नीचे उतरे और कूद कर घोड़े पर सवार हुए। उन्हें पकड़ने के लिए रूमी सवार टेकरी के दोनों तरफ से आए। उनकी तादाद मौर्रिखों के मुताबिक 30 थी। ज़र्रार ने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़े को तेज ना दौड़ाया। रूमी सवारों ने भी घोड़े तेज न दौड़ाए। वो गालिबन मोहतात थे कि मुसलमान संतरी कहीं मौजूद होंगे। फिर भी रूमी सवारों ने ज़र्रार का ताक़ुब जारी रखा और ज़र्रार मामूली रफ्तार से चले आए। रूमी सवार उन्हें घेरे में लेने के लिए फैलते चले गए और वो एक दूसरे से दूर होते गए। ज़र्रार उनके बिखरने के ही मुंतजिर थे। उनके पास बर्छी थी। उनकी अपनी खैमागाह करीब आ गई थी। अचानक ज़र्रार ने तेजी से घोड़े को पीछे मोड़ा और एड़ लगाई। उनका रुख उस रूमी सवार की तरफ था जो उनके करीब था। उन्होंने उस रूमी पर बर्छी का वार किया। वार बड़ा जोरदार था। रूमी संभल न सका। ज़र्रार का हमला गैर मुतवक्के था। ये सवार घोड़े से गिर पड़ा। दूसरे रूमी सवार अभी समझ भी न पाए थे कि ये क्या हुआ है कि ज़र्रार की बर्छी एक और रूमी के पहलू में उतर चुकी थी। तीसरा सवार ज़र्रार की तरफ आया तो ज़र्रार की बर्छी में पिरोया गया। मुसलमानों की खैमागाह करीब ही थी। फिर भी रूमी ज़र्रार को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। ज़र्रार माने हुए शहसवार थे। वो रूमियों के हाथ नहीं आ रहे थे। रूमियों की तादाद अब 27 थी। ज़र्रार भाग निकलने की बजाय उन्हीं में घोड़ा दौड़ाते और पैंतरे बदलते फिर रहे थे। उनकी बर्छी का कोई वार खाली न जाता था। वाक़िदी और तबरी ने लिखा है कि ज़र्रार ने बर्छी के साथ साथ तलवार भी इस्तेमाल की थी। उनकी तहरीरों के मुताबिक ज़र्रार ने 30 में से 19 रूमी सवारों को मार डाला था। ज़र्रार को जद में लेने की कोशिश में रूमी मुसलमानों की खैमागाह के और करीब आ गए थे। बहुत से मुसलमान सवार ज़र्रार की मदद को पहुंचने के लिए तैयार होने लगे। रूमियों ने ये खतरा बर वक्त भांप लिया और वो भाग गए। ज़र्रार अपनी खैमागाह में दाखिल हुए तो मुजाहिदीन ने दादो तहसीन का शोर गोगा बपा किया। उनका इस्तकबाल किया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने गए तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर खफगी थी। उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा, क्या मैंने तुझे किसी और काम के लिए नहीं भेजा था और तूने दुश्मन से लड़ाई शुरू कर दी? क्या तूने अपने फर्ज के साथ बेइंसाफी नहीं की? ज़र्रार बिन अल अज़वर ने कहा, इब्न वलीद, खुदा की कसम तेरे हुक्म का और तेरी नाराजगी का ख्याल न होता तो जो रूमी बचकर निकल गए हैं वो भी न जाते। उन्होंने मुझे घेर लिया था। उसके बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी को रूमी खैमागाह की जासूसी के लिए न भेजा। 3-4 दिन और गुजर गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने आराम कर लिया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने शब रोज जागते, सोचते और खैमे में टहलते गुजरे। अपने से 3 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देना तो जरा दूर की बात है, उसके मुकाबले में उतरना ही एक बहादुरी थी। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फतह के सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। वो हर शाम सालारों और कमांडारों को बुलाकर उनसे मशवरे लेते और हिदायत देते थे। रूमी कैंप में कुछ और ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। उनके सलार कुबकुलार का हौसला जवाब दे रहा था। मुतादिद मौरिखों ने, खुसूसन वाक़िदी ने ये वाक़या तफसील से लिखा है। कुबकुलार ने अपने सालार आला वरदान से कहा, मैं बड़ा ही खुशकिस्मत होता अगर मैं मुसलमानों की फौज से दूर रहता। ऐसे नजर आ रहा है कि वो हम पर गालिब आ जाएंगे। वरदान ने कहा, ऐसी बेमानी बात मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। क्या एक आदमी कभी 3 आदमियों पर गालिब आया है? कुबकुलार ने कहा, ऐसा कई बार हुआ है। वरदान ने कहा, हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, और वो तुम जैसे 3 आदमी थे जो मैदान में उतरने से पहले ही हौसला हार बैठे। कुबकुलार ने कहा, क्या वो एक आदमी नहीं था जिसने हमारे 30 में से 19 सवारों को मार गिराया है? 30 सवार एक सवार पर गालिब नहीं आ सके। वरदान ने कहा, वो सिपाही थे, बुज़दिल थे, तुम सालार हो।
तुम ये भी भूल गए हो कि मैदान जंग में बुज़दिली की सजा मौत है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम पर मुसलमानों का जादू चल गया है? सालार कुबकुलार ने कहा, जब से एक मुसलमान ने हमारे 30 आदमियों का मुकाबला किया और 19 को मार गिराया है, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि उस एक आदमी में इतनी ताकत और इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। फिर बोला, मैंने एक अरबी ईसाई को मुसलमानों के कैंप में भेज रखा था। वो 3-4 दिन मुसलमान बनकर उनकी खैमागाह में रहा। कल वो वापस आया है। उसने जो कुछ बताया है उससे मुझे पता चला है कि उनकी ताकत क्या है। वरदान ने पूछा, उसने क्या बताया है? कुबकुलार ने कहा, मैं उसे साथ लाया हूँ, सारी बात उसी से सुन ले। जासूस को बुलाया गया। वरदान ने उससे पूछा कि मुसलमानों की खैमागाह में उसने क्या देखा। जासूस ने ताजीम से कहा, सालार आला का रुतबा कैसर रूम जितना हो। मैंने उस खैमागाह में अजीब लोग देखे हैं, वो जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हम जैसे नहीं। वरदान ने पूछा, तुम इतने दिन उनके दरमियान कैसे रहे? क्या तुम पर किसी ने शक नहीं किया? जासूस ने जवाब दिया, मैं उनकी जबान बोलता हूँ, उनके तौर तरीके जानता हूँ, उनके मजहब और उनकी इबादत से वाकिफ हूँ। वो अपनी फौज में आपकी तरह किसी को भर्ती नहीं करते। जो कोई उनकी फौज में शामिल होना चाहता है अपना हथियार और अपना घोड़ा लेकर शामिल हो जाता है। मैं मुसलमान बनकर उनकी फौज में शामिल हो गया था। फिर वो बोला, मैंने उन मुसलमानों में कुछ नए उसूल देखे हैं। रात को वो इबादत गुजार होते हैं और दिन को ऐसे जंगजू जैसे वो लड़ने मरने के सिवा कुछ जानते ही ना हो। अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फरोग के लिए लड़ने और जान देने को ये अपना ईमान कहते हैं। इनका हर एक सिपाही इस तरह बात करता है जैसे वो किसी सालार के हुक्म से नहीं बल्कि अपनी जाती लड़ाई के लिए आया हो। वो सब एक जैसे हैं। लिबास से सालार और सिपाही में फर्क मालूम नहीं किया जा सकता। फिर बोला, मैंने उनमें मसावात के अलावा इंसाफ देखा है। अगर उनके हाकिम या अमीर का बेटा चोरी करे तो उसका भी हाथ काट देते हैं। अगर वो किसी औरत के साथ बदकारी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सरेआम खड़ा करके पत्थर मारते हैं हत्ता कि वो मर जाए। ये लोग इतने मुतमईन हैं कि उन्हें कोई फिक्र कोई परेशानी नहीं। फिर बोला, सालार आला अगर मुझे माफ कर दें तो मैं कहूँ, हमारी फौज में वो वस्फ नहीं जो मुसलमानों में देख कर आया हूँ। मुसलमानों का कोई बादशाह नहीं। हमारे सिपाही बादशाह के हुक्म से लड़ते हैं और जब देखते हैं कि बादशाह उन्हें नहीं देख रहा तो वो अपनी जाने बचाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान एक खुदा को अपना बादशाह समझते हैं और वो कहते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है और उन्हें देख रहा है। मशहूर मौरिख तबरी ने लिखा है कि कुबकुलार बोल पड़ा। उसने कहा, मैं कहता हूँ कि मैं इस जमीन के नीचे चला जाऊँ जिस जमीन पर उनसे मुकाबला करना पड़े। काश मैं उनके करीब न जा सकूं। न खुदा उनके खिलाफ मेरी न मेरे खिलाफ उनकी मदद करे। वरदान ने कुबकुलार से कहा कि उसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन कुबकुलार का लड़ने का जज्बा मांद पड़ गया था। 27 जमादुल अव्वल 13 हिजरी 29 जुलाई 634 ईस्वी की शाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को आखिरी हिदायत दी और अपने लश्कर की तकसीम कर दी। 28 जमादुल अव्वल 13 हिजरी 30 जुलाई 634 ईस्वी को मुजाहिदीन ने रोजमर्रा की तरह फजर की नमाज बाजमात पढ़ी। सबने गिड़गिड़ा कर बड़े ही जज्बाती अंदाज में दुआएं मांगी। बहुत से ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू आ गए। उनमें से न जाने किस किस की ये आखिरी नमाज थी। नमाज के फौरन बाद उन्हें अपने अपने दस्तों के साथ उन जगहों पर जाना था जो उनके लिए गुज़श्ता रात मुकर्रर की गई थी। सूरज निकलने से पहले पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर अपनी जगहों पर पहुंच चुका था। रूमियों ने ये सोचा था कि वो अपनी इतनी ज्यादा तादाद के बलबूते पर इतना फैल जाएंगे कि मुसलमान इतना फैले तो उनकी सफों में शिगाफ पड़ जाएंगे। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तादाद की किल्लत के बावजूद महाज 5 मील लंबा बना दिया था। इससे ये खतरा कम हो गया कि रूमी पहलुओं में जाकर या पहलुओं से अकब में जाकर हमला करेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी दानिशमंदी ये की कि अपने लश्कर का मुंह मगरिब की तरफ रखा ताकि सूरज उनके पीछे और रूमियों के सामने रहे और वो आंखों में सूरज की चमक पड़ने की वजह से आंखों को खोल न सके।